চাথাম দ্বীপ আন্দামানত আধুনিক জনবসতি আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰথমটো দ্বীপ। এই চাথাম দ্বীপতে আছে চৰকাৰী চাথাম চমিল। এই চমিলটো এছিয়াৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ পুৰণি তথা বৃহত্তম চমিলবোৰৰ ভিতৰৰে এটা চমিল। এই ভিডিঅ'টোৰ যোগে আপোনালোকক এই দ্বীপ তথা এই মিলটোৰ বিষয়ে আমি সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বিহু লক্ষ্য সোমাইছো। তোমালোক আহিছা, ভাল লাগিছে। তোমালোকৰো ইমান ব্যস্ত চাকৰিৰ মাজতো তোমালোকে যে আন্দামানৰ ইমান ঐতিহ্য সৌন্দৰ্য সকলোখিনি কালেক্ট কৰি তোমালোকে অসমীয়া ৰাইজক ইমান ধুনীয়াকৈ সময়ে সময়ে কিছুমান ইউটিউবত দি আছা, সেইখিনি যথেষ্ট ভাল লাগিছে। মই আমাৰ ৰাইজক চিনাকি কৰি দিছোঁ। এখেত আমাৰ দিগন্ত গগৈ ছাৰ। এখেত আন্দামান নিকোবৰ এজন মুখ্য বন সংৰক্ষক বিষয়া, আৰু আমাৰ দিগন্ত গগৈ ছাৰৰ ঘৰ অসমৰ লখিমপুৰত। আন্দামানহে এখন ঠাইত থাকি এনে এটা ডাঙৰ পদত তেওঁ থকাক লৈ আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। তেওঁ থকাৰ বাবে আজি এই যিটো চাথাম আইলেণ্ড, সেইটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে, আৰু আমাৰ এই গোটেই ভিডিঅ'টোত আমি গোটেই আইলেণ্ডটোৱেই এটা ডাঙৰ এটা হিষ্টৰিক প্লেচ হয়, হিষ্টৰিকেল প্লেচ। আমি গোটেই আইলেণ্ডটো আপোনালোকক দেখুৱাম, আৰু আপোনাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক এই সুবিধাকণ দিয়াৰ বাবে। তোমালোকে জানাই যে 1798 চনত আৰ্চিবাল্ড ব্লেয়াৰে প্ৰথম খোজটো ইয়াতে পেলাইছে, গোটেই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জৰ ভিতৰত। তাৰ পাছতে তেওঁলোক নেভেল আৰু কি কয় এইটো আমাৰ যিবিলাক কয়দীবিলাকক আনি পেলাই প্ৰথম ইয়ালৈকে স্থাপন কৰিবলৈ আহিছিলে। তাৰ পাছতে ঘটনাক্ৰমে ইয়াত এইটো 1883 চনত প্ৰথম এই চমিলটো স্থাপন কৰিলে। তো সেইবিলাকেই ইয়াৰ বুৰঞ্জী হয়। তো ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ছেকশ্যন আছে, প্ৰায় 11-12টা ছেকশ্যন আছে। তো ব্ৰিটিছৰ দিনৰ গোটেই যন্ত্ৰ পাতিবিলাক আছে, এতিয়াও চলি আছে। সেইখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ল'বা, ৰাইজৰ আগত দেখুৱাবা, কাৰণ ইয়াত যথেষ্ট টুৰিষ্টবিলাকো সেইবিলাকেই পুৰণা ঐতিহ্যপূৰ্ণ বস্তুবিলাকে চাবলৈ আহে। গতিকে সেইখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ দেখুৱাব বুলি আশা কৰিম। ধন্যবাদ। আপুনি যে আমাৰ প্ৰতি ইমান আশা কৰিছে, আমি চেষ্টা কৰিম যাতে কিবা এটা ভাল আমি অসমীয়া ৰাইজক দেখুৱাব পাৰোঁ। আমিও গৌৰৱ কৰোঁ আপুনি এটা আন্দামানহে ইমান আঁতৰৰ জেগাডোখৰত থাকি আপুনি এটা উচ্চ পদত আছে। চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ আমি অসমীয়া ৰাইজক এই চাথাম আইলেণ্ডৰ বিষয়ে, আন্দামানৰ বিষয়ে আমি যিমান পৰিমাণ ভালদৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ পাছতে যিজন ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট ছাৰ্ভিচৰ ডেপুটি কনজাৰ্ভেটৰ ফৰেষ্ট DFO ৰেংকৰ অফিচাৰ আছে, তেওঁ আণ্ডাৰতে তেওঁৰ লিডাৰশ্বিপত চলি আছে। তেওঁৱে মেইন মেনেজাৰ হয়। তেওঁ আৰু তেওঁৰ আণ্ডাৰত যিমানখিনি এছিষ্টেণ্ট মিল মেনেজাৰ, বিভিন্ন ছেকশ্যন ইনচাৰ্জবিলাক আছে, তেওঁলোকে ক'ব, ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব। তোমালোকক মই তেওঁলোকক লগ কৰাই দিছোঁ। ব'লা। He is Mr. Naveen Kumar, Indian Forest Service officer from 2010 batch. So he is managing all affairs of the mill. So you can have an interaction with him and get the required information from him. Okay, thank you. Please. Thank you, sir. Take Thank your you seat. for the warm introduction. Please. Thank you, sir. Please. सर थैंक यू, आपने हमें इतना अच्छा ऑफर दिया कि आपसे 2 चार बात कर पाए। It's my pleasure. सर अब तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लगभग 2 साल होने वाला है सर, 1 साल होने हो गया है, लगभग 2 साल होने वाला है जल्दी। सर थोड़ा मिल के बारे में बोलेंगे, हिस्ट्री के बारे में आप जो जानते हैं सर। ज़रूर जी। चातम एक ऐतिहासिक एक जगह है। जो चातम आइलैंड पर से आप देखने से मतलब यहाँ पर जब बाहर से एस्टेब्लिशमेंट शुरू किया था, मतलब पीनल सेटलमेंट बोलिए या ब्रिटिशर का सेटलमेंट बोलिए, सो इट स्टार्टेड फ्रॉम चातम। जब आर्किड ब्लेयर करके जो फर्स्ट कॉलोनियल एस्टेब्लिशमेंट लेकर आया था, व्हेन ही केम टू अंडमान आइलैंड्स, ही विजिटेड, he
विजिटेड वाइपर आइलैंड। वाइपर करके उनका बोट था, वो शिप में आते वक्त ही क्रैश्ड इनटू एन आइलैंड, सो दैट आइलैंड हैव बीन नेम्ड आफ्टर दैट। सो उसके बाद व्हेन ही स्टार्टेड फर्स्ट एक्सप्लोरेशन, सर्वे एक्सप्लोरेशन, ही लैंडेड इन चाथम आइलैंड। सो ड्यूरिंग दोज डेज इट वाज कॉल्ड एज पोर्ट कॉर्नवालिस। सो पोर्ट कॉर्नवालिस करके इसको नाम देके ही स्टार्टेड सर्वे फ्रॉम दिस प्लेस। सो चाथम का आइलैंड के यहाँ पर आने के बाद दे स्टार्टेड इन लेट पार्ट ऑफ 1790s। जब शुरू करते वक्त 1 year दे स्टे एरिया। सो रहते वक्त यहाँ पर मतलब अभी जो प्रेजेंटली सीसीएफ का रेजिडेंस वगैरह आइलैंड के अंदर है, यहाँ पर दे हैड अ वेजिटेबल गार्डन, फार्मिंग वगैरह करता था। उसके बाद कुछ उनका क्रू को रख के दे स्टार्टेड बिल्डिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। सो यहाँ पर शुरू हुआ, फिर हिस्ट्री नोस लाइक 6 साल के बाद फिर वापस चला गया बिकॉज ऑफ मलेरिया रिलेटेड फीवर्स। सो व्हेन दे रिटर्न बैक अगेन इन 1883, it was they landed with convicts again, 200 convicts. First convict people, they first lot of convicts, they landed in Chatham Island. 200 people and landed. So again it is historical landing. फ्रीडम स्ट्रगल पे आपको बताइएगा या आज के डेट में मतलब अंडमान ये लेवल तक डेवलपमेंट हुआ करके बोलने से दैट 200 पीपल आर कंट्रीब्यूट। सो उस टाइम से टिल द टाइम ऑल द टिम्बर रिक्वायरमेंट वॉट एवर इट वॉज रिक्वायर्ड इन दी अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैव बीन मेट फ्रॉम साउथ ईस्टर्न कंट्रीज। यहाँ पर टिम्बर इतना मजबूत है करके किसी को पता नहीं है, नो रिसर्च और नोबडी हैड यूटिलाइज्ड इट फॉर कमर्शियल यूजेस। सो उसमें क्या हुआ था कि 1883 पे जब ब्रिटिशर कम्प्लीटली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरा उनको करना है करके जब डिसाइड किया था, इट हैपन सो दे हैड आइडेंटिफाइड पड़ाक एंड अदर टिम्बर्स विच आर रियली यूजफुल। मतलब पड़ाक करके जो अंडमान का जो निशानी है, आप बोल सकते हैं इट्स सिग्नेचर प्रोडक्ट। सो वो जो है दे हैड आइडेंटिफाइड इट। वो आइडेंटिफाई करने के बाद दे वांट टू प्रमोट दिस इंटरनेशनल अरीना। सो इंटरनेशनल वुड एक्सपो हुआ करता था उस टाइम पे, मतलब टू शोकेस देयर नेचुरल वेल्थ इन वेरेवर विच एवर प्लेस द ब्रिटिश वर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग होल्ड। सो तब कोलकाता में एक बार कलकत्ता में 1883 में वुड एक्सपो हुआ था। सेम ईयर दे अंडरस्टूड द ह्यूज पोटेंशियल लाइंग विद द पड़ाक एंड अदर टिम्बर्स ऑफ अंडमान। सो एडिनबर्ग में 1883 में अनदर वुड एक्सपो वाज प्रमोटेड। वहाँ पर इट गॉट अ ह्यूज सक्सेस एंड अक्रॉस ग्लोब अंडमान पड़ाक वाज एंड अदर टिम्बर्स वर सोल्ड आफ्टर दैट एक्सपो। मेन कस्टमर्स वर न्यूयॉर्क, USA, London, part of many European nations, they were taking timber from us. So not to forget or not to mention, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टिम्बर्स वर सप्लाइड फ्रॉम हियर। तो उसके बाद से मतलब इंटरनेशनल इकोनॉमी में मतलब अंडमान पर से फॉरेस्ट रिसोर्स हैड प्लेड अ मेजर रोल इन इट। तो लेटर पार्ट ऑफ 1800s में गवर्नमेंट सॉमिल वाज स्टार्टेड। सो 1800 लेटर पार्ट में शुरू किया था। शुरू करने के बाद इट वाज विद द PWD, इनिशियली विद द PWD। सो इट फंक्शन इन अ प्लेस कॉल्ड बातू बस्ती में था। फिर उसके बाद गाराचरम में आया। वहाँ पर आपका मतलब पानी का सोर्स बहुत कम है। सो उसमें देखा गया तो मतलब यू नीड टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर। सो उसमें आइडेंटिफाई किया है चाथम आइलैंड विल बी अ गुड प्लेस फॉर स्टार्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट। So this is the one of the major industries during this is one and only major industry during those time. So उसके बाद 1912 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट had taken over चाथम sawmill from PWD, एस्टेब्लिश करने के बाद फर्स्ट PWD उनको हैंड ओवर कर दिया। So from 1912 onwards the forest department's role in managing the Chatham sawmills comes here. सो उस टाइम पे मतलब ब्रिटिशर्स ही मैनेज करता था। सो उस टाइम पे ट्राम लाइन जो अब एक लोको बाहर रखा हुआ, वो लोको वगैरह 1900 से 1903 से शुरू हुआ था। 1903 से अब ट्राम लाइन्स वगैरह आने लगा था। ट्राम बोलने से उस टाइम पे खाली ट्रॉलीज रहता था। ट्रॉलीज में आप लॉग वगैरह डाल के बड़ा लॉग्स, उस टाइम पे आदमी खींचता था, बुलक कार्ट्स रख के बफलोस वगैरह रख लेता था। उसके बाद 1920s somewhere in 1920s first
आपका स्टीम इंजन आया है आपका स्टीम इंजन ट्राम लाइन के लिए उसके लिए लोको इंजन आया था। हाँ। उसके बाद सब्सिक्वेंटली इट वाज फॉलोड बाय आपका डीजल इंजन। डीजल इंजन आया 1952 में फर्स्ट डीजल इंजन इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर इट कंटिन्यूड। सो 1991 तक ट्राम लाइन वगैरह इट वाज फंक्शनल वेरियस पार्ट ऑफ आइलैंड्स। मेनली आप साउथ अंडमान एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड फेली वगैरह होता तो फिर वहाँ से ट्राम लाइन से आता था। ट्राम लाइन से फिर हमारा लॉक डिपो वगैरह काफ़ी ज़्यादा जगह पे था, वहाँ उधर से फिर टो करके लॉक्स वगैरह लेकर आके चातम सॉमिल पे सॉइंग करता है। सो दिस इज़ द ओनली सॉमिल टू फीचर इन मेजर इंडस्ट्रीज इन द साउथ ईस्टर्न एरिया। साउथ ईस्टर्न एरिया पे मतलब टिल डेट इट इज़ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट sawmill. We had a handling capacity during those days before Supreme Court intervention. अब डायरेक्शन का बात अभी कम हुआ है, मतलब फॉरेस्ट वगैरह भी वी आर टेकिंग कंजर्वेशन एंगल पे आ गया। इसके पहले 2000 तक यहाँ पर देखा था 25,000 क्यूबिक मीटर पर एनम यहाँ से प्रोड्यूस होता था। इट इज़ टू मीट आउट द लोकल रिक्वायरमेंट। आबादी बढ़ते गया, फिर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट बढ़ते गया, उसके बेसिस में हम टिम्बर सप्लाई भी करते गया था। सो इस फेस में अब हमारे पास मतलब मेनलैंड को भी कैटर करने का एक ऑब्जेक्टिव था। उसके लिए मतलब चेन्नई और कोलकाता का थ्रू भी मेनलैंड टिम्बर रिक्वायरमेंट यहाँ से मीट आउट होता था। सो टिल 2000 लाइक डिपार्टमेंट वाज कंसिडर्ड टू बी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद आवर role had changed and we became a conservation and service related department। उसके बाद से अब देखने से now we are totally into managing the forest, bringing back the converted forest। वो plantation वगैरह करा था, plantation वगैरह convert करके हम natural forest में लेकर आ रहे हैं। So चातम sawmill में अभी production जो हो रहा है it is only for catering the local public का जो requirement है उतना अभी cater करने का ये कर रहा है। अभी ब्रिटिश ऑक्यूपेशन का टाइम पे देयर वाज वन पीरियड ऑफ 3 year शॉर्ट स्टिंट ऑफ जापानीज ऑक्यूपेशन बिटवीन 1942 to 1945। उस टाइम पे अब जैसे मैं बात कर रहा था कि दिस इज द ओनली मेजर इंडस्ट्री। अब इट हैड कंट्रीब्यूटेड मच ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी जब शुरू कर लिया तो ड्यूरिंग दैट टाइम अगेन दिस प्लेस वाज सपोर्टिंग एंटायर फ्लीट ऑफ ब्रिटिश आर्मी। अब ब्रिटिश आर्मी का मतलब शिप्स जितना मैन्युफैक्चर होता है, गन्स बट वगैरह जितना मैन्युफैक्चर होता है, टिम्बर वेयर यूज्ड टू बी सप्लाइड फ्रॉम हियर। सो यहाँ से जा रहा है तो फिर जापानीज गॉट अ हिंट दिस इज द प्लेस विच इज सप्लाइंग द मटेरियल। सो देयर मेन टारगेट वाज टू फिनिश ऑफ द चातम। सो जब ब्रिटिशर को हिंट मिला था दे आर ऑक्यूपाइंग इंडियन टेरिटरी, दे स्टार्टेड मूविंग आउट ऑफ फ्रॉम दिस प्लेस। यहाँ पर एक जाने के पहले एक फॉरेस्टर, एक द नेम ऑफ मिस्टर दुर्गा प्रसाद, लेट दुर्गा प्रसाद, ही वाज देयर। उनका हैंड ओवर कर दिया था चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर करके, उनको हाथ में दे के सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे आ गया था ब्रिटिशर्स। सो उस टाइम पे क्या किया कि दे प्लांटेड बॉम्ब अक्रॉस चातम आइलैंड करके, फिर उनका हाथ में दे के तुम जापानीज को संभालो करके दे वेंट अवे। इमीडिएटली ही किक्ड इनटू एक्शन, ही डिफ्यूज्ड ऑल द बॉम्ब्स। बॉम्ब को डिफ्यूज करके उस टाइम उन्होंने बचाया, नहीं तो मतलब चातम could never exist। So that was a major role played by a forest officer in protection of the Chatham Island। So उसके बाद Japanese आया, they bombed and again the reconstruction after withdrawal of Japanese, Britisher again they occupied। 1946 again the reconstruction activity in Chatham had started। फिर आप जो फर्स्ट इंडक्टेड फॉरेस्ट ऑफिसर जो मिल में जाकर देख रहा है 45 से ही स्टार्टेड रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। उधर से लेके द लेगेसी कंटिन्यूस टिल डेट। वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द लोकल डिमांड एंड इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। सो मोटा मोटी यही है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखा तो चातम आइलैंड हैड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल टिल डेट। अभी आप इसको देखने के लिए मतलब हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस तो 200 लोग जो आया था वही लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का फ्री लेबर यहाँ पर वुडन ब्रिज वगैरह बनाया था। कंक्रीट ब्रिज व्हाट यू आर सीइंग बिटवीन मेन साउथ अंडमान चातम आइलैंड वाज बिल्ट बाय दोस कन्विक्ट।
सो ड्यूरिंग दोस टाइम मतलब बर्मिस का भी बर्मा से भी लोग आते थे। लोग आता था इन द सेंस लाइक कॉन्विक्स लेकर आके चातम मिल वाज बिल्ट बाय बोथ इंडियन एंड बर्मीज कॉन्विक्स इनमेट्स ही बनाया था। सो अभी भी आप मिल पे जब आप जाएगा आर्किटेक्चर वगैरह देखने से दो इट इज अ डिज़ाइन ऑफ ब्रिटिशर्स बट इट वाज टोटली द handicraftsmanship of Burmese. So it's a legacy, the freedom struggle which have been put forth by various countries under occupation of Britishers. You could feel it, till date you can feel it. Yes. So I'm really happy that you are covering such a significant part of freedom struggle in Indian history. Because it has been always never covered. आप सेल्लर जेल के अलावा आप कहीं हमको पता नहीं चलता है मतलब where it had started. Historical place है। This is the place where our freedom struggle had really started. Yes. So और एक वार मेमोरियल भी जो 200 लोग आए थे उनके नाम पे उनका बनाया वार गया, 2008 मेमोरियल भी में। रखा है, वार मेमोरियल भी रखा है. It has its own significance उसमें. So let us not forget the sacrifice at सेल्लर जेल. But आया वाला उधर के लिए आया था, इधर से मतलब जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह था जो 1700 लेटर पार्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इधर से ही आपको ब्रिक्स वगैरह लेकर जाके आप सेल्लर जेल वगैरह बनाते वक्त इनिशियल स्टेज में इधर से मटेरियल गया था. सो इट वाज काइंड ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ एब्सोल्युटली. सर मैंने सुना है हम लोगों ने सुना है कि यहाँ पर जो मिल बना आप बोले थे 1946 में फिर से रिकंस्ट्रक्शन. मैं सुना है अभी जो मशीनरी पार्ट्स है वो सब भी उसी ज़माने के हैं अभी. तो फर्स्ट एक 8 फीट करके अभी भी एज अ हिस्टोरिकल पीस वी हैड केप्ट इट. 8 फीट मशीन मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट मशीन यू कैन डिस्क्राइब इन द वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड. उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जब आया था इट वाज अ सेकेंड हैंड मशीनरी ब्रॉट फ्रॉम ब्रिटेन. वहाँ से यूएस का प्रोडक्शन है. इट वाज इंस्टॉल्ड इन ब्रिटेन. फिर वहाँ से लेकर आके सेकेंड हैंड मटेरियल लेकर आके यहाँ पर चला टिल 1970s. उसके बाद अभी जो करंटली जो चल रहा है 72 का वो भी अगेन इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मशीन इन द कंट्री एज वेल एज इन वर्ल्ड. वो भी अभी भी चल रहा है. एंड देयर आर मशीनरीज विच आर प्री इंडिपेंडेंस एरा. अभी भी चल रहा है. वी आर रनिंग इट. Still running. We are managing all the spare parts. We produce our own. फिर मेनलैंड पे बेच के उसका मॉडल वगैरह बना के लेकर आके we are kept it functional. We are proud of keeping it functional. इतना पुराना मशीन इतना टाइम तक मतलब बहुत बड़ी बात है आज के लिए. प्री इंडिपेंडेंस मशीन जो चल रहा है ये तो काबिल तारीफ है बहुत. Absolutely. ऐसा शायद खूब कम मशीन ही होगा जो इतना अभी ऑलमोस्ट 75-76 ईयर्स एबव 76 ईयर्स चल रहा है. और उसका मेंटेनेंस में जो भी लोग हैं उनको भी काफ़ी मतलब काफ़ी उनको तो तारीफ करना पड़ेगा क्योंकि मेंटेनेंस मेजर रोल प्ले करता है एक मशीन के लिए. मशीनरीज जनरली वो आउटलिव हो जाता है आफ्टर 20 ईयर्स. आपको कोई भी इंडस्ट्री में जाने से यहाँ पर लोग वो जो हिस्टोरिकली ट्रांसफर हुआ नॉलेज हाउ टू मेंटेन इट करके उस पर आ रहा है. नो इंडस्ट्री विल हैव अ नो अबाउट हाउ टू मेंटेन अ मशीन ऑफ दिस वर्ल्ड. लेकिन यहाँ पर वो जो कंटिन्यूटी है करके लोग मेंटेन करता है. तो दैट इज़ द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस अगेन. वो उस टाइम से जो नॉलेज ट्रांसफर होके आ रहा है टिल डेट इट इज़ बीन कैरी फॉरवर्ड टू मेंटेनेंस ऑफ द मिल मशीनरीज. यहाँ पर आप देखने से द ओल्डेस्ट मशीनरी इज 1948 मिल मशीनरी. आप EOT क्रेन एक चल रहा है अभी भी मतलब आप उसी से हम लाभ लेते हैं छोड़ता है. वो 1948 का एक है, 1952 का एक है. बोथ आर फंक्शनल. और 8 फीट बंद हो चुका है. और 54 एक मशीन है दैट वाज आल्सो ड्यूरिंग द 1950s. अभी रिसेंटली जस्ट 8 years बैक इट वेंट ऑफ फ्रॉम द सर्विस. one more machinery is there which is of 1960s. Till date it is functional. So historically the mill is also can be termed as ऐतिहासिक एक जगह है. not only the island per se. Even mill machineries. Even mill machineries are of independence era. सर यहाँ पर जब टूरिस्ट आएंगे जनरली मैं देखता हूँ कि ये इसको टूरिज्म में इतना ज़्यादा कवर नहीं किया जाता है. जो भी लोग आते हैं सिल्वर जेल, हेमलॉक आइलैंड देख के चले जाते हैं.
सर यहाँ पर अगर टूरिस्ट हैं मेनली क्या क्या चीज़ देख पाएंगे? भी एक्चुअली आप पोर्ट ब्लेयर में आप टूरिज्म करके देखने से आता है एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपका हैवलॉक हो चुका है। यहाँ पर मतलब हिस्टोरिकल टूरिज्म के नाम पे ही ये जाना जाता है, अंडमान आइलैंड, सेलुलर जेल पर्टिकुलरली। अब फिर फ्रीडम स्ट्रगल पे इंटरेस्ट लेने वाला ज़रूर इधर आता है। फिर सेकंड आपका एंथ्रोपोलॉजी में इंटरेस्ट रहने वाला जो ट्राइबल्स के बारे में आता है, जो एक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के म्यूजियम विजिट करता है ज़रूर डे विजिट पे। सेकंड मोस्ट विजिटेड एरिया इज आफ्टर सेलुलर जेल इज चातम सामिल। अब चातम सामिल सेलुलर जेल देखने के बाद ज़रूर लोग इधर आता है, बिकॉज वंस आफ्टर रीचिंग दैट दे विल बी टोल्ड चातम आइलैंड पे पहले हुआ था, सीधा उधर से इधर आके देखने के लिए आता है। ओके, सो वी अट्रैक्ट अराउंड 20,000 टूरिस्ट पर एनम। सो easily we are pulling a crowd of at least 40 to 50% of visiting tourists यहाँ पर। इतना लोग इधर आता है एंड पीपल हु आर इंटरेस्टेड, रियली इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री जानने के लिए लोग आता है। यहाँ पर आते वक्त आपका एक मेमोरियल, वॉर मेमोरियल जो एस्टेब्लिश किया है उसको देखने के लिए आता है। सेकंड चातम सॉमिल अगेन टिल डेट इट इज़ वन अमंग द लार्जेस्ट सॉमिल, सो उसको देखने के लिए तो ज़रूर इधर आता है। ओके सर, थैंक यू सर। आपने सर हमें बहुत अच्छा दिया, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिया। मतलब हम लोग सोच नहीं पा रहे थे कि इतना सारा हिस्ट्री छुपा हुआ इस आइलैंड, ये छोटा सा आइलैंड है। सर थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। जरूर जी। वन मोर पार्ट, यहाँ पर अब एक बंकर भी है यहाँ पर। हाँ, यस, थैंक्स टू द जापानीज। आप 3 साल ऑक्यूपेशन में द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जापानीज कैन नॉट बी फॉरगॉटन, क्योंकि एंटायर अंडमान निकोबार आइलैंड का सर्वे कंप्लीट किया उन्होंने, टोपोग्राफिकल सर्वे, कंप्लीट सर्वे उन्होंने किया। प्लस आप अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में आप देखने से ऑल द कोस्ट हैव बीन फिल्ड विद बंकर्स। यस ऑल उतना 3 साल के अंदर इतना सारा बंकर्स वो बनाने का मतलब सोच भी नहीं सकते आज का डेट में। मतलब फ्री लेबर्स, आवर ओन पीपल वर इन्वॉल्व इन दैट। सो करने के बाद अभी उसमें एक इम्पॉर्टेंट बंकर यहाँ पर भी था, क्योंकि इट्स अ मेन चैनल फॉर एनी शिप्स टू कम इन। सो उसको देखभाल करने के लिए दिस बंकर वाज वन इम्पॉर्टेंट हाइड आउट फॉर देम। यहाँ का जो बंकर है वो काफ़ी बड़ा भी है, बड़ा भी है, बाकी अदर जगह से places देखा था बहुत बड़ा है ये बंकर। सो ये चैनल जो है, ये चैनल को आप प्रोटेक्ट करना, तो दिस बंकर हैड प्लेड अ ह्यूज रोल यहाँ पर। और एक होपटोन करके एक जगह है, वहाँ पर एक बंकर है। दीज 2 बंकर वर द सेफ जोन फॉर जापानीज। और एक बॉम्ब पिट भी इधर है। हाँ, ड्यूरिंग 1943 पे जब जापानीज ऑक्यूपेशन हुआ था, एज वी डिस्कस्ड, जो इसको डिस्ट्रॉय करना था, जब बॉम्ब गिरा तो यहाँ पर आवर पीपल वर ऑन ड्यूटी में रहते वक्त वॉचमैन यहाँ पर आप काम करा था, उनका मतलब ही वॉज टोटली डिकैपेसिटेटेड, हाथ पैर दोनों चला गया था, बट ही वॉज इन सर्विस। अभी रिसेंटली एक 3 साल का पहले उनको डेथ हुआ था। थ्रू हिम वी केम टू नो अबाउट लॉट ऑफ इंसिडेंट्स, कैसे हुआ था, ये ब्रिटिशर्स कैसा इधर से निकला भाई। एक प्रॉक्सी फॉरेस्ट ऑफिसर को उधर बिठाया गया था, ही इज़ द चीफ ऑफिसर करके, नन अदर देन दुर्गा प्रसाद। उसको देखे वो भागा था, फिर वो दुर्गा प्रसाद आके उसका बॉम्ब वगैरह डिफ्यूज़ किया था। सब हमारा स्टाफ जो मिल का जो वर्कर्स था उस टाइम का, वही लोग सब डिफ्यूज़ किया। बट इट वाज ऑल instant command of Durga Prasad, the mill could be saved. नहीं तो that was the end of Chatham Sawmill. Britisher they never had a hope that they will come back again. फिर आए तो within 2 years they rebuilt and it started functioning. तो आप जो फॉरेस्ट ऑफिसर दुर्गा प्रसाद, उनका भी काफ़ी मतलब इसमें हिस्टोरिकल रोल है, तो उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये इतने कम टाइम में ऐसे मतलब, क्योंकि वो तो कोई मिलिट्री ऑफिसर नहीं है बेसिकली, फॉरेस्ट ऑफिसर फिर भी ये प्रोटेक्शन के लिए, तो उनको भी हम मतलब मानना पड़ेगा। तो ये खुशी का बात है, मतलब कंट्रीमैन को जनरली ये आइडिया नहीं रहता है मतलब फ्रीडम स्ट्रगल यहाँ से क्या हुआ था। मतलब मेनलैंड इंडिया वाज नेवर इन ऑक्यूपेशन ऑफ जापानीज। दिस इज़ द ओनली पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी विच वाज अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ जापानीज। वो कितना तकलीफ लोग उठाया यहाँ पर, कैसा जिया उस टाइम पे। सो डेफिनेटली आप लोगों का द्वारा वो काफ़ी लोगों का कान में, मन में जाएगा ये ज़रूर। सो आई एम रियली हैप्पी।
I'm really happy to have you here to cover up on the Chatham Island. So I really thank on behalf of department. Thank you. Thank you so much.